Children, here in this video we are going to study about the different agents of cross-pollination. Now let me tell you what is cross-pollination. The transfer of pollen grains from one flower to the stigma of other flower present on a different plant but belonging to the same species is called as cross-pollination. Now, for this transfer of pollen grains, agents are required. So in this video, we are going to study about the different agents, and along with this, we will study the characteristics of flowers which are particularly pollinated by that agent. Let's start. Wind and insects are the commonest agents of cross-pollination. But some flowers are also pollinated by certain animals, and the term which we use for this is zoophily. Some flowers are also pollinated by birds, and the term which we use for this is ornithophily. Now let us take an example of zoophily. Rafflesia, it is the largest flower, and this flower is pollinated by elephant. The term which we use for the flower pollinated by elephant is elephophily. Now children, let us see these two pictures. Here this one is ornithophily, means flower pollinated by bird, and this is the Rafflesia. This is the largest flower. Children, this flower is pollinated by elephant. Now how does the elephant pollinate this flower? This flower usually grows close to the ground level, and when elephant walks, maybe some pollen grains of this flower stick to the feet of elephant, and when that elephant put his leg or trample the other Rafflesia flower, then pollen grains are transferred to the other flower. So this is how the pollination occurs in Rafflesia. Let's move on. Each category of pollinated flowers by different agents has some special features to promote chances of pollination. So here we are going to start with entomophilous. Entomophilous, this term is made up of two words. The first one is entomon, which means insects, and the other one is phyle, which means affinity. This means that entomophilous flowers are the insect pollinated flowers. So the entomophilous flowers have the following features. The flowers are large. Why? So that insects can easily see them. These flowers are usually brightly colored. Why? To attract the insects for pollination. These flowers usually emit scent for attracting insects for pollination. They produce nectar, and this nectar is the food for the insects. Now, the pollen grains produced by entomophilous flowers are sticky and spiny, sticky or spiny, to enable them to be carried by insects only. The stigma is sticky and does not generally hang out from the flower. This one is a sticky stigma, and this is the stigma hanging out of the flower. So hanging stigma is usually found in wind pollinated flowers, whereas in insect pollinated flowers, stigma remains inside. Why? Because insects usually suck the nectar from the flower and they go inside and suck it, or they insert their mouth parts inside the flower and suck the nectar. Then pollen grains present on the surface of insects may get stick to the stigma, which is usually present inside the flower. So that's why the stigma is sticky and it does not generally hang out from the flower. So the flowers tend to be in clusters. In case if these flowers are present individually, then they will not be very conspicuous. So insects will not be attracted towards them. So when these flowers are present in clusters, when small flowers are present in clusters, they become conspicuous and insects are attracted towards them. So children, these were the characters of the insect pollinated flower, or we can also call it as entomophilous flowers. So children, let me tell you once again what I have explained you in this video. मैंने आपको बताया कि हम इस वीडियो में एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र,
ये दोनों फ्लावर्स दूसरे प्लांट पर प्रेजेंट हैं और दोनों एक ही स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर इस ट्रांसफ़र के लिए हमको एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। हम इस वीडियो में उन एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ किसी फ्लावर में पर्टिकुलरली किस तरह की अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस एजेंट को अट्रैक्ट कर सके पॉलिनेशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। विंड और इंसेक्ट्स जो होते हैं वो सबसे कॉमन एजेंट होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के। कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो कुछ एनिमल से भी पॉलिनेट होते हैं और उसके लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो होता है जूफिली। कुछ फ्लावर्स बर्ड्स से भी पॉलिनेट होते हैं, तो जो टर्म हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑर्निथोफिली। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जूफिली का। रेफ्लेशिया एक लार्जेस्ट फ्लावर होता है और ये फ्लावर जो है ये पॉलिनेट होता है एलिफेंट से, और इसके लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं दैट टर्म इज़ एलिफोफिली। अब बात करते हैं इन दो पिक्चर्स की। इसमें ये पिक्चर दिस वन इज़ शोइंग ऑर्निथोफिली, अ फ्लावर पॉलिनेटेड बाय अ बर्ड, और ये जो फ्लावर है दिस वन इज़ रेफ्लेशिया। ये रेफ्लेशिया बहुत ही ज़मीन पर, जिसे कहते हैं बहुत ऊंचा फ्लावर नहीं होता है, ग्राउंड के पास ग्रो करता है। तो एलिफेंट जब जाता है तो उसकी फीट पर ऐसा हो सकता है कि इसके पॉलन स्टिक हो जाए, और उसके बाद जब वो लेग्स जो उसकी फीट पर पॉलन ग्रेन्स स्टिक हैं, वो वाला फीट जब वो किसी दूसरे रेफ्लेशिया फ्लावर पर रखेगा तो पॉलन ग्रेन्स उस पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस तरह से रेफ्लेशिया में पॉलिनेशन होता है। तो ये टर्म जो हम यूज़ करते हैं ये है ऑर्निथोफिली। और बेटा ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने अभी तक यहाँ पर 4 टर्म्स पढ़ लिए हैं। जूफिली पढ़ा है, ऑर्निथोफिली पढ़ा है, एलिफोफिली पढ़ा है, और अभी आप 3 टर्म्स पढ़े। अब आप नेक्स्ट टर्म जो पढ़ेंगे वो होगा एंटमोफिलस। अब बात करते हैं कि हर कैटेगरी में जो भी पर्टिकुलर एजेंट से इन्वॉल्व होता है, पॉलिनेट होता है, उसमें कुछ स्पेशल फीचर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे वो पॉलिनेशन के चांसेस को और बढ़ा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं एंटमोफिलस फ्लावर से। एंटमोफिलस का मतलब वर्ड, ये जो वर्ड है टर्म, ये 2 वर्ड से बना हुआ है। एक है एंटमॉन जिसका मतलब होता है इंसेक्ट, और फाइल का मतलब होता है एफिनिटी। तो एंटमोफिलस फ्लावर्स का मतलब है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। तो एंटमोफिलस फ्लावर्स के फॉलोइंग फीचर्स हैं। सबसे पहले फ्लावर को लार्ज होना चाहिए जिसके लिए वो ईजिली विजिबल हो। अगर इंडिविजुअल फ्लावर है तो वो बड़ा हो, और अगर स्मॉल फ्लावर्स हैं तो वो क्लस्टर्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। उसके साथ साथ इन फ्लावर्स को यूजुअली ब्राइटन कलर होना चाहिए सो दैट दे कैन बी अट्रैक्टेड ईजिली बाय द इंसेक्ट्स। सो इंसेक्ट्स कैन बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फ्लावर। देन दे यूजुअली एमिट सेंट। इस तरह के फ्लावर्स जब सेंट या फ्रैग्रेंस एमिट करते हैं तो उससे इंसेक्ट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसके साथ साथ ये नेक्टर भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये नेक्टर क्या होता है? इंसेक्ट का फूड होता है जो इंसेक्ट सक करता है। आगे बढ़ते हैं। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं इन फ्लावर्स के, वो कैसे होते हैं? स्पाइनी होते हैं और स्टिकी होते हैं। क्यों? इससे इंसेक्ट क्या करता है, वो उसको ईजिली जो है वो कैरी कर सकता है, वो उनके सरफेस पर स्टिक कर जाता है। फिर बात करते हैं स्टिग्मा की। स्टिग्मा स्टिकी होता है और बाहर हैंग आउट नहीं करता। हैंग आउट क्यों नहीं करता? क्योंकि हैंगिंग स्टिग्मा विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का एक एग्जाम्पल होता है, एक कैरेक्टर होता है। उसके अलावा एक और चीज़ होती है, क्योंकि नेक्टर जो होता है वो फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है, और इंसेक्ट को फ्लावर पर बैठकर या तो अपने माउथ पार्ट को सक इंसर्ट करके नेक्टर सक करना होता है, या तो इंसेक्ट खुद ही अंदर जाता है। तो अगर दोनों ही केस में ऐसा हो सकता है कि इंसेक्ट पर जो अंदर स्टिग्मा है उसके पॉलन ग्रेन्स जो हैं इंसेक्ट पर जो प्रेजेंट हैं वो स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो जाए। तो इस तरह से पॉलिनेशन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में होता है। अब एक लास्ट चीज़ की हम बात करने जा रहे हैं कैरेक्टर की, कि अगर फ्लावर्स तो स्मॉल है, मैंने आपको कहा था, तो वो क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं जिससे कि वो कॉन्स्पीशियस हो, ईजिली विजिबल हों, तो तुरंत ही वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म हो रहा है। मैंने आपको एंटमोफिलस फ्लावर्स के कैरेक्टर्स बता दिए हैं, कुछ टर्म्स आपने पढ़े इसके लिए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।